Hello students. So today let us continue with equality in Indian democracy. In the last two classes, we learned about the discrimination that was done on the basis of gender, on the basis of caste. We took the example of Valmiki, Om Prakash Valmiki, जिनको class पूरा school sweep करवा गया था, and then we saw basis of religion. Religion में मिस्टर एंड मिसेस अंसारी को फ्लैट चाहिए था रेंट पे, बट बिकॉज दे एट नॉन वेज कोई उनको दे नहीं रहा था. इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ नॉन वेज, इट वॉज बिकॉज ऑफ देयर सर नेम. एंड जो ब्रोकर था वो उनको कहता है कि आप अपना नेम चेंज कर लो, तब उन दोनों की डिग्निटी हर्ट होती है. एंड ऐसे लोगों को हम जब लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है तब उनकी डिग्निटी हर्ट होती है. डिग्निटी इज सेल्फ रिस्पेक्ट. Today we'll continue with equality in Indian democracy. The Indian Constitution recognizes every person as equal. This means that every individual in the country, including male and female persons from all caste, religion, tribe, educational and economic backgrounds, are recognized as equal. This is not to say that inequality ceases to exist. It doesn't, but at least in democratic India, the principle of equality of all persons is recognized. While earlier, no law existed to protect people from discrimination and ill treatment. Now there are several that work to see that people are treated with dignity and as equals. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इक्वालिटी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया हुआ है. इसका मतलब हर एक इंडिविजुअल इंक्लूड इक्वल है, बीट मेल फीमेल या कोई भी रिलीजन, कास्ट, ट्राइब, एजुकेशन या इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो. इसका मतलब ये नहीं होता कि इनइक्वालिटी ख़त्म हो गई, सीजीज मतलब स्टॉप हो गए, बट एटलीस्ट इन डेमोक्रेटिक इंडिया अब लोगों को इक्वल रिकॉग्नाइज किया जाता था. पहले उनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था और पहले कोई लॉ भी नहीं था उनको प्रोटेक्ट करने के लिए. But now there are many people and many laws that are working to protect the dignity and equality of people. These recognition of equality includes some of the following provisions in the Constitution. First, that every person is equal before law. What this means that Kanta, a domestic worker, has to obey the same law. Second, no person can be discriminated on the basis of their religion, race, caste, place of birth, or whether they are male or female. Third, every person has access to all public places, including playgrounds, hotels, shops, markets. All persons can use publicly available wells, roads, bathing ghats. Fourth, untouchability has been abolished. तो गवर्नमेंट ने सर्टेन प्रोविजंस दिए हुए ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन recognize equality. First is every person is equal before law. मतलब लॉ के सामने हर एक पर्सन इक्वल है, फिर चाहे वो प्रेसिडेंट हो या फिर वो कांता वर्कर हो, हर एक पर्सन इक्वल है. सेकेंड, कोई भी इंसान को हम लोग रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ या मेल है फीमेल उसके बेसिस पे हम उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, हम उनको अलग अलग नहीं गिन सकते हैं. थर्ड, एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस, फिर चाहे वो प्ले ग्राउंड हो, होटल्स हो, शॉप्स हो, मार्केट्स हो, फिर पब्लिक बाथ्स हो, कुछ भी हो. एंड फोर्थ, वी कैन नॉट प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी. अनटचेबिलिटी किसी को कम गिना या किसी के साथ मतलब आप वहाँ मत टच करो, वहाँ मत टच करो, जैसे पहले हुआ करती थी. सो दिस आंसर इज इम्पॉर्टेंट. प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर ऑल द 4 पॉइंट्स. The two ways in which the government has tried to implement the equality that is guaranteed in the Constitution is first through laws and second through government programs or schemes to help disadvantaged communities. There are several laws in India that protect every person's right to be treated equally. In addition to laws, the government has set up several schemes to improve their lives of the communities and individuals who have been treated unequally for several centuries. These schemes are to ensure greater opportunity for people who have not had this in the past. गवर्नमेंट ने ट्राई किया कि इक्वालिटी वो 2 तरीके से इम्प्लीमेंट कर सके. फर्स्ट, उसने एक तो लॉ बनाया गवर्नमेंट ने, एंड सेकेंड, गवर्नमेंट नई नई प्रोग्राम स्कीम्स लाती है, प्रोग्राम्स और स्कीम्स, ताकि जो डिसएडवांटेज पीपल है, जिनको इक्वलिटी नहीं मिलती है, उनको हेल्प कर सके.
काफ़ी सारे लॉज बनाए हुए हैं जिससे एक पर्सन इक्वली ट्रीट हो सके, और गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सारी स्कीम्स लाई हुई है जिसके वजह से जो लोग कम्युनिटीज़ है और इंडिविजुअल्स है उनकी लाइफस्टाइल इम्प्रूव हो सके, एंड जो अनइक्वली ट्रीट होते थे उनको इक्वालिटी मिल सके। और ये स्कीम्स एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है फॉर पीपल जिनको पास्ट में इक्वालिटी नहीं मिलती थी, इनके लिए अभी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है बिकॉज दे आर ट्रीटेड इक्वली। One of the steps taken by the government includes the midday meal scheme. This refers to the program introduced in all the government elementary school to provide children with cooked lunch. Tamil Nadu was the first state in India to introduce this scheme, and in 2001, the Supreme Court asked all the state governments to begin this program in their schools within 6 months. This program has had many positive effects. This includes the fact that more poor children have begun enrolling and regularly attending school. Teachers reported that earlier children would often go home for lunch and then not return to school, but now, the midday meal being provided in school, their attendance has improved. Their mothers, who earlier had to interrupt their work to feed their children at home during day, now no longer need to do so. This program has also helped reduce caste prejudices. Both lower and upper caste children in school eat this meal together, and in quite few places Dalit women have been employed to cook the meal. The midday meal program also helps reduce the hunger of poor students who often come to school and cannot concentrate because their stomachs are empty. तो गवर्नमेंट ने ये जो स्कीम करी है मिड डे मील स्कीम, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। क्यों? ये प्रोग्राम में क्या होता है, सबसे पहले जो भी स्कूल्स होती है, प्राइमरी स्कूल्स या एलिमेंट्री स्कूल्स, वहाँ पे बच्चों को दोपहर का लंच प्रोवाइड किया जाता है। सबसे पहले तमिलनाडु वॉज द फर्स्ट स्टेट, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सारे गवर्नमेंट को बोला कि आपको 6 महीने में हर जगह ये स्कीम इम्प्लीमेंट करनी है। तो ये प्रोग्राम के काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स आए। सबसे पहले सबको अगर खाना मिलता हो तो क्या होता था कि ठीक है, उनको खाने की टेंशन नहीं थी, तो मोर पुअर चिल्ड्रन स्टार्टेड एनरोलिंग, वो स्कूल में आने लगे और उन्होंने पढ़ाई स्टार्ट की। फिर काफ़ी बार टीचर्स कंप्लेन करते थे सेकेंडली कि बच्चे लंच के लिए घर जाते तो फिर वापस नहीं आते, बट जब मिड डे मील स्कीम स्कूल में ही प्रोवाइड किया जाता है तो उनकी अटेंडेंस भी इम्प्रूव हुई है। थर्डली, उनकी मदर्स को भी अपना काम छोड़ के बच्चों को खाना खिलाने के लिए घर आना पड़ता था, अब वैसा भी नहीं करना पड़ता। और ये प्रोग्राम की वजह से जो कास्ट प्रेजुडाइज था, कास्ट बायस्डनेस था, वो भी रिड्यूस हुआ है, क्योंकि सारे अपर कास्ट के बच्चे और लोअर कास्ट के बच्चे साथ में बैठ के खाना खाते हैं। और काफ़ी सारों जगहों पे तो दलित वुमेन को भी एम्प्लॉय किया गया है टू कुक मील। और ये प्रोग्राम की वजह से काफ़ी बार ऐसा होता था कि अगर बच्चे भूखे हो तो वो अपनी पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते थे। मिड डे मील स्कीम की वजह से अब वो भी प्रॉब्लम ख़त्म हो गया है। While government programs play an important role in increasing equality of opportunity, there is much that still needs to be done. While the midday meal program has helped increase the enrollment and attendance of poor children in school, there continues to be big differences in the country between schools that the rich attend and those that the poor attend. Even today, there are several schools in the country in which Dalit children like Om Prakash Valmiki are discriminated against and treated unequally. भले ही गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करी है सारे प्रोग्राम्स बनाकर, पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अभी भी इम्प्रूव कर सकते हैं। मिड डे मील स्कीम के वजह से स्कूल में एनरोलमेंट तो बढ़ा है, अटेंडेंस भी बढ़ी है, पर जो डिफरेंस था, रिच स्कूल्स जो जैसे काम करती थी एंड जैसे पुअर स्कूल्स काम करी है, उन दोनों के काम करने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। आज भी काफ़ी सारी ऐसी स्कूल्स है जहाँ पे दलित चिल्ड्रन, जैसे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, वैसे दलित चिल्ड्रन के साथ भी आज भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। These children are forced into unequal situations in which their dignity is not respected. This is because people refuse to think them as equal, even though the law requires it. भले लॉ ऐसा कहती है कि हमें सबको इक्वली करना चाहिए, पर इन लोगों को रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है एंड दे आर ट्रीटेड अनइक्वली।
One of the main reasons for this is that attitudes change very slowly. Even though persons are aware that discrimination is against the law, they continue to treat people unequally on the basis of their caste, religion, disability, economic status, and because they are women. It is only when people begin to believe that no one is inferior and that every person deserves to be treated with dignity that present attitudes can change. Establishing equality in a democratic society is a continuous struggle and one in which individuals as well as various communities in India contribute to, and you will read more about this in this book. इसके पीछे मेन रीज़न क्या है ये डिस्क्रिमिनेशन के पीछे? कि लोगों का एटीट्यूड बहुत धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अगर इंसान को पता है कि डिस्क्रिमिनेशन करना वो लॉ के अगेंस्ट है, फिर भी वो सबको अनइक्वली ट्रीट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, डिसेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेटस या तो फिर जेंडर के हिसाब से। अगर सब मानने लगे कि सब इक्वल है या कोई किसी से इन्फीरियर नहीं है, कोई किसी से नीचा नहीं है, तो एवरी पर्सन को इक्वली ट्रीट करना चाहिए बिकॉज हर एक इंसान की डिग्निटी होती है और उसके बाद ही लोगों का एटीट्यूड चेंज हो सकता है। एंड एस्टेब्लिशिंग इक्वालिटी इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी वो बहुत ज़्यादा बड़ी कंटिन्यूस स्ट्रगल है बिकॉज लोगों के माइंडसेट बहुत धीरे धीरे चेंज होते हैं एंड वन इन विच इंडिविजुअल्स एज वेल एज वेरियस कम्युनिटीज़ इन इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट टू। वो कैसे चेंज होते हैं, क्या क्या होता है, वो हम इसी बुक में आगे आगे पढ़ते जाएंगे। नाउ इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर कंट्रीज। You are probably wondering whether India is the only democratic country in which there is inequality and whether the struggle for equality continues to exist. The truth is that in many democratic countries around the world, the issue of equality continues to be the key issue around which communities struggle. For example, in United States of America, the African Americans whose ancestors were slaves who were brought over from Africa continue to describe their lives today as largely unequal. This despite the fact that there was a movement in late 1950s to push the equal rights for American African. Prior to this, American Africans were treated extremely unequally in United States and denied equality through law. For example, when traveling by bus, they either had to sit at the back of the bus or get up from the seat whenever a white person wished to sit. आपको ऐसा लग रहा है कि इंडिया डेमोक्रेटिक है, एक ही ऐसी डेमोक्रेटिक है जहाँ पे अनइक्वालिटी प्रैक्टिस होती है? नहीं, इनफैक्ट बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जहाँ पे इक्वालिटी इज़ द मेजर इशू जिसके बेसिस पे कम्युनिटी स्ट्रगल करती है। अगर यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो अफ्रीकन अमेरिकन ना हुआ अफ्रीकन अमेरिकन जिनके एंसेस्टर्स, जिनके फोर फादर्स अफ्रीका में रहते थे, उनको अमेरिकन स्लेव बना के अफ्रीका में लेके आए थे। सो नाउ दे आर अफ्रीकन अमेरिकन उनको कहते हैं। उनको बहुत ज़्यादा अनइक्वली ट्रीट किया जाता था। 1950s में इक्वल राइट के लिए मूवमेंट भी स्टार्ट की, बट उससे पहले तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उससे पहले अगर आप बस में ट्रैवल कर रहे हो एंड इफ़ यू आर अफ्रीकन अमेरिकन, तो या तो आपको उठ के पीछे चले जाना पड़ता था या तो कोई वाइट पीपल के लिए आपको अपनी सीट खाली करनी पड़ती थी। रोजा पार्क्स in 1913 to 2005 was an African American woman. Tired from a long day at work, she refused to give up her seat on a bus to a white man on December 1st, 1955. Her refusal that day started a huge agitation against the unequal ways in which African Americans were treated and which came to be known as the Civil Rights Movement. The Civil Rights Act of 1964 prohibited the discrimination on the basis of race, religion, or national origin. It is also stated that schools would be open to African American children and they would no longer have to attend separate schools specially set up for them. However, despite this, a majority of the African Americans continued to be poor, among the poorest in the country. Most African American children can only afford to attend government schools that have fewer facilities and poorly qualified teachers as compared to white students who either go to private schools or live in the areas where government schools are as highly rated as private schools. एक बार दूसरा एक उन्होंने इंसिडेंट बताया। रोजा पार्क करके एक लेडी थी।
शी वॉज एन अफ्रीकन अमेरिकन, वो अपने काम से वापस जा रही थी अपने घर, एंड शी वॉज सो टायर्ड, तो उन्होंने एक वाइट मैन को सीट देने से मना कर दिया ऑन December 1, 1955। रिमेंबर दिस, सिविल राइट्स मूवमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनके राइट उन्होंने मना किया, उस दिन से एक ह्यूज एजिटेशन, एक ह्यूज प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ अगेंस्ट अनइक्वल वेज, जहाँ पे अफ्रीकन अमेरिकन को अनइक्वली ट्रीट किया जाता था, एंड दिस मोमेंट केम टू बी नोन एज सिविल राइट्स मूवमेंट। ये सिविल राइट एक्ट भी उसके बाद पास हुआ 1964 में, जिसमें लिखा गया है कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन इज प्रोहिबिटेड। पर फिर भी अगर देखे जाए तो उसके बाद अमेरिकन अफ्रीकन अमेरिकन के लिए भी स्कूल ओपन कर दी, और उन लोगों को ज़रूरत नहीं थी कि जो सिर्फ स्पेशल सेटअप स्कूल्स थी उसमें जाने के लिए। पर उसके बावजूद आज भी अगर मेजॉरिटी ऑफ द अफ्रीकन अमेरिकन देखें तो पुअरेस्ट पीपल में आते हैं, and still most African Americans can only afford to go to the गवर्नमेंट स्कूल्स, जहाँ पे फैसिलिटीज़ भी बहुत कम होती है और टीचर्स भी बहुत पुअरली क्वालिफाइड होते हैं एज़ कम्पेयर टू वाइट स्टूडेंट्स। जब वो वाइट स्टूडेंट्स कहाँ जाते हैं, वो लोग प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं, गवर्नमेंट एरियाज़, या तो फिर वो ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल बहुत ज़्यादा डिग्निफाइड हो और एकदम प्राइवेट स्कूल के बराबर हो। सो हर जगह ये चीज़ प्रैक्टिस होती है। ओके, एग्जर्ट आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ इज प्रोहिबिटेड। कोई भी स्टेट सिटीजन्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। एंड उन लोगों को पब्लिक शॉप्स एक्सेस करने की परमिशन है, पब्लिक रेस्टोरेंट्स में जा सकते हैं, होटल्स, प्लेसेस, पब्लिक एंटरटेनमेंट भी वो लोग एक्सेस कर सकते हैं। या तो फिर डिस्क्रिमिनेशन जहाँ पे वेल्स, टैंक, बेथिंग घाट्स है, रोड्स है, प्लेसेस है, वहाँ पे भी उनको डिस्क्रिमिनेशन करने का अलाउड नहीं है। चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी, नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक। कोई भी कंट्री को हम कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते। कुछ देयर आर ऑलवेज कम्युनिटीज़ एंड इंडिविजुअल्स जो ये डेमोक्रेसी के आइडिया को एक्सपांड करना चाहते हैं, उनको पुश करना चाहते हैं, ताकि ग्रेटर इक्वालिटी के कंसेप्ट आ सके, जो आज है उससे ज़्यादा बेटर हो सके। सेंट्रल टू दिस इज द स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ पर्सन एज इक्वल एंड देयर फॉर द डिग्निटी टू बी मेंटेन। ये मेन सेंटर क्या है इसका, कि लोगों को इक्वली ट्रीट करना है एंड जो भी सबको इक्वली रिकॉग्नाइज करना है, सबकी डिग्निटी मेंटेन करनी है। ये एक मेन मोटो होता है डेमोक्रेसी का। और ये बुक में हम फर्दर देखेंगे कि इक्वालिटी के इफेक्ट्स क्या हुए हमारे वेरियस लाइफ्स, हमारे वेरियस एस्पेक्ट्स में ये इक्वालिटी कैसे मैटर करती है। थैंक यू।